Good evening and Assalamu alaikum. Am I audible and is the screen visible? I think that Yes, sir. Okay, fine. Okay, so in the last lecture, we ended with the Nernst equation and the two relationships, delta G and log K. Today, we will be talking about Faraday's law and the products of electrolysis. Okay. So write the first topic, that is एक काम कीजिए आप पहले Faraday's law लिख लीजिए. ठीक है. So any question of Faraday's law, ठीक है. There are two formulas that you have to remember. उसके बाद सारे सवाल हो जाएंगे. पहला है आपका that is the one that you have already learned in the 11th and 10th standard, rather, and also in the 12th standard, that Coulomb is equal to ampere multiplied by second. सही. अब Coulomb को जैसे कि ऐसे लिखा जाता है that Q is equal to IT is the generic form that you must have seen. Q is equal to IT. है ना. बट हम यहाँ पे with units I am writing because time sometimes it will be given in hours and minutes. You have to always convert it into the seconds. And charge will be given sometimes in Faraday. You have to convert it into coulombs. ठीक है. C is equal to A into S. That corresponds to Q is equal to IT. That is one of the formula. And the other formula that you have to remember is number of Faraday. It is equal to moles into the change in oxidation state. ठीक है. बस यही दो फॉर्मूला है और एक रिलेशनशिप दैट 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलॉम्स पर मोल. ठीक है. और दूसरा जो आप लोगों को पता है दैट इज मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, इट इज इक्वल टू द गिवन मास डिवाइड बाय द मोलर मास. ठीक है. ये दिस रिलेशनशिप यू ऑलरेडी नो, दिस कांस्टेंट value you would already know. The only two formula that you need to remember for any numerical of Faraday law is C is equal to AS, Coulomb is equal to ampere into seconds, and F is equal to moles into delta OS. आप इन फॉर्मूला को पहले लिख लीजिए, देन वी विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस और कोई भी सवाल नहीं बचेगा. Raise your hand once you're done writing. ठीक है. ना हम लोग सवाल देखते हैं सीधा, है ना. जस्ट जैसे ये दो सवाल है. How much charge in terms of Faraday is required to reduce 1 mole of MnO4 negative MnO4 negative to Mn2 positive. ठीक है. पहले इस सवाल को देखेंगे हम 66 नंबर.
is required to reduce 1 mole. फैराडे पूछा हुआ है, तो यू ऑलरेडी नो फैराडे इट इज। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे कूलम्स पूछा है ना, तो आप आई इंटू टी मत लगा दीजिएगा, या एम्पेयर इंटू सेकंड्स मत लगाइएगा, बिकॉज इट इज नॉट गिवन एक्चुअली, है ना। सो वेन एवर आपके पास आया ना कि इतने मोल से यू हैव टू कन्वर्ट दिस टू दिस, तो वो फैराडे से ही आएगा, बिकॉज देयर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। 66 नंबर क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है, मोल्स आपको पता चल गया, दैट नंबर ऑफ मोल्स it is equal to how much? 1. Now you need to calculate the delta S. For that, you need to write the MnO4 negative to Mn2 positive. ठीक है? If you calculate the oxidation state of Mn here, it will be X plus 4 into minus 2, it is equal to minus 1. X is equal to 8 minus 1, X is equal to plus 7. So plus 7 से plus 2 जा रहा है, that means the change in oxidation state, delta OS, it is equal to how much? 5. So Faraday is equal to moles multiplied by delta OS. This will be equal to 1 mole, and how much change in oxidation state is 5. So this will be equal to 5 Faraday. Make sense? Yes or no? Please tell me. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। उसी तरह से देखिए, नेक्स्ट 67 नंबर, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड। पहले फैराडे निकाल लीजिए, फैराडे को। अच्छा, मान लीजिए इसी को कूलम्स में चेंज करना हो तो 5 इंटू 96 500 कूलम्स कर लेते हैं ना, तो ये कूलम्स में आ जाता है आंसर। ठीक है, चलिए देखिए 67 कूलम्स आपको यहाँ पे क्या बोला हुआ है, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O टू O2। मोल्स आपके पास कितना आ गया? 1। आपको जाना कहाँ से? H2O से O2। आपको कुछ भी यहाँ पे बैलेंसिंग वैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको मोल्स बता दिया ना अगर उन्होंने। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 2, तो फिर आप सोचेंगे 2 मोल्स ऑफ H2O है क्या? नहीं भाई, उन्होंने जब बोला है दैट इट इज ओनली 1 मोल ऑफ H2, यू जस्ट टेक 1 मोल ऑफ H2O। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स इट। व्हाट इज डेल्टा OS? Oxygen here is minus 2, oxygen here is 0. Delta OS is equal to 2. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. समझ में आ रही है? Yes, sir. So Faraday will be equal to moles multiplied by delta OS. Moles will be equal to how much? 1. Delta OS is equal to 2. तो ये हो जाएगा 2 Faraday. In order to change into coulombs, 2 into 96500, and this will be in coulombs. Copy this down. Raise your hand once you're done writing. Then आप लोग अब एक दो सवाल करेंगे, ठीक है? जल्दी से इसका आंसर कर लीजिए। दिस इज सिमिलर क्वेश्चन दैट वी हैव डन। ठीक है, चलिए।
Send your answer on the Zoom chat. Yes, Krishna. Fadil, waiting for your answer. Yeah, correct. Fadil, correct. Very good. चलिए. Now we are going to look at some different type of question. ना थोड़ा सा अलग. एक आपके पास इस तरह का सवाल आएगा. ठीक है. तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए. यू कैलकुलेट द चार्ज इन टर्म्स ऑफ कूलॉम. ठीक है. कूलॉम के हिसाब से आप चार्ज निकाल लीजिए. तो आपके पास क्या दिया हुआ है, 5 एम्पेयर फॉर 20 मिनट्स. सो कूलॉम इज इक्वल टू एम्पेयर इंटू सेकेंड्स. Ampere is 5 ampere and second is equal to how much, 20 into 60. 5 to the 10 and 10 into 6 will be 60 and two more zeros. ठीक है. This much coulomb make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, 6000 sir. coulombs. ठीक. We have 6000 coulombs. और दूसरा हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है, we have a formula that Faraday it is equal to moles into delta OS. ठीक है. अच्छा, 1 Faraday it is equal to how much? 1 Faraday it is equal to, ठीक है, मान लीजिए आपके पास, हाँ, 96500. सो वट एवर वैल्यू हियर यू आर गेटिंग, यू विल बी गेटिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ फैराडे. ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास हाँ, 96500 कुलॉम्स. ठीक है. अच्छा, अब ये जो भी वैल्यू आएगा ना, दिस विल ऑल्सो गिव यू सर्टन फैराडे और सर्टन कुलॉम्स में ये आंसर आएगा. ठीक है. तो अगर हम इस पर्टिकुलर आंसर को कुलॉम्स में इक्वेट करें, सो दिस विल बी इक्वल टू मोल्स इनटू डेल्टा ओएस इनटू 96500. अब ये जो आएगा आंसर ना, दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ कूलम्स. मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है. अच्छा, अब ए इंटू एस वाला भी कूलम में आंसर आएगा, ये भी कूलम में आंसर आएगा. बोथ दी आंसर विल बी सेम बिकॉज बस फॉर्मूला अलग है, मीन सारी चीजें तो सेम हो रही है. ठीक है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू इक्वेट दीज टू थिंग्स. ठीक है, इक्वेट कर देना. अच्छा, और मोल्स को आप क्या लिख दीजिए, मास अपॉन मोलर मास इंटू डेल्टा ओएस. डेल्टा ओएस की अगर हम बात करें, सो निकल इज +2 स्टेट. यहाँ पे NO3 में होता है -1 चार्ज, AgNO3 ऐसा होता है, तो -1 चार्ज टू निकल. राइट. व्हाट मास ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड. आप इसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस विल बी गेटिंग कन्वर्टेड टू निकल. तो +2 से कहा जा रहा है 0. सो डेल्टा ओएस विल बी इक्वल टू 2. तो मास अपॉन मोलर मास की भी वैल्यू दी हुई है आपको. क्या दी हुई है वैल्यू? द वैल्यू इट इज गिवन एज
कितना दिया हुआ भाई? 58.7। डेल्टा वर्सेस 2 × 96500 कूलॉम्स, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 6000 कूलॉम है उस पर से इक्वेट कर देंगे। सो दिस विल बी 6000 will be equal to mass upon 58.7 into 96500 into 2 भी रह गया था ना, अच्छा into 2। So these zeros will be cancelled, ठीक है। आपको W निकालना है। W will be equal to 60 into 58.7 in, no not into anymore, divided by 965 into 2। You will get the answer in terms of grams। कैलकुलेट करके बताएं आंसर कितना आ रहा है। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। व्हाट हैपेंड अरसलान, काफी लेट? सॉरी सर, मैं स्कूल से वापस आया था तो सो गया था। अभी कुछ ही मिनट पर उठा हूँ। अच्छा, सही। अरे आंसर तो बताएं, आंसर नहीं आ रहा किसी का। अच्छा, कॉपी भी कर ले जब तक। यू मस्ट बी कॉपिंग राइट नाउ।
अरे भाई साहब, अभी भी स्टिल नो आंसर। अप्रोक्सीमेट आंसर कम से कम ले आए ना आप लोग। आई होप यू गाइस कैन डू अप्रोक्सीमेट आंसर। 30 है ना? सो कितना हो जाएगा तो ये? अप्रोक्सीमेटली इसको 60 अगर मान ले, 6 3 सा ये 1.8 के करीब आएगा, है ना? बिकॉज इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.8 1.7 ग्राम्स के करीब आएगा, ठीक है। अंदाजन से इस वजह से बोल रहा है दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 60, ठीक है। सो 6 3 एंड 180 डिवाइड बाई 965, है ना? तो इसको थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया था, ठीक है। तो इट विल नॉट बी एग्जैक्टली 180, 180 से थोड़ा कम होगा। अगर 180 होता तो अप्रोक्सीमेटली फिर भी वही वही रहता ना आंसर, 180 के करीब ही होगा। 58 58.7 इंटू नॉट 180 बट रादर 1800 के करीब होगा, ठीक है ना। एंड 9 2 इज 18, ठीक है। तो 9 से थोड़ा सा कम करना पड़ेगा आपको, तो 1.8 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आंसर बोल रहे हैं 1.7 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, इस तरह का सवाल कर लेंगे। बादल, कृष्ण प्रिया, अरसलान। यस सर। ठीक है, चलिए एक सवाल देते हैं आप लोगों को।
सेकंड्स पूछा हुआ तो और आसान हो जाएगा ना। इस फादिल अरसलान आपसे हो रहा है ये सवाल? यस सर, कर रहा हूँ। ठीक है। 2 minutes will be enough? 2 more minutes? जी बताएं। यस सर। ठीक है। Fadil is getting 1,447,000 seconds. What about Arslan? What about you? आपको कितना आ रहा है? वैसे एक्चुअली सब कैलकुलेशन में थोड़ा कर रहा हूँ मैं। जी में लाइक 30 more seconds, do it. I'll send it to you. 30 more seconds कीजिए। 30 more seconds का भी टाइमर लगा देते हैं हम। 30 seconds are over. Arslan, यस सर, मैं आपको चैट में लिख दूँ या? चैट में लिख दीजिए, काफी होगा। ठीक है। सो वी हैव Fe3 positive to Fe2 positive. It is very much easily seen that delta OS will be equal to 1. Moles will be equal to 3. तो अगर हम Faradays की बात करें तो Faraday will be equal to 3 into 1, that is equal to 3 Faraday. 3 Faraday का मतलब 3 into 96500 coulombs. तो एक कूलॉम से हमारे पास ये आ गया, और दूसरा कूलॉम इज इक्वल टू एम्पेयर इनटू सेकंड्स। ठीक है। तो कूलॉम कितना आया था? 3 into 96500। ठीक है। इज इक्वल टू एम्पेयर कितना है? एम्पेयर इज 3 एंड सेकंड्स हम लोग को निकालना है, तो सेकंड्स नहीं, एम्पेयर इज 2, माय बैड गाइस। सो सेकंड्स विल बी इक्वल टू 3/2 into 96500। सही है। 3/2 विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1.5 इंटू 96500। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 15 इंटू 96510। सो 15 5 सा 75, 15 छक 90, 97, 135, 135 और 9 कितना हो जाएगा? 135 और 9 ये हो जाएगा 144, और एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा। सो दिस मेनी सेकंड्स यू विल गेट। फादिल, आपका थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। यहां तक सही आया है फादिल आपका? यहां तक या फिर यस यहां सर, तक? यस सर, यस सर। देखिए, मैं आपको मिस्टेक कर दिया है। हाँ ठीक सर, है। by dividing with 2 I made a mistake somewhere.
ये 3/2 में आपने मिस्टेक कर दिया, 1.5 होगा। खैर हाँ, चलिए। first I multiplied the whole thing, then I divided, इसलिए शायद। ओह, अच्छा अच्छा। हाँ, हो सकती है ऐसी गलती, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट थोड़ा केयरफुल है ना। अब ये कीजिए जरा, Yes, sir. मास ऑफ एरियम दे देते हैं आपको। आई थिंक देयर विल बी गिवन, आपको दिया हुआ होगा मोलर मास इज 108, है ना। 1 फैराडे का 96800 आप लोग को याद ही होगा। मोलर मास ऑफ एरियम।
गाइस फटाफट, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग रहा आप लोगों को? और कितना देर? अच्छा, आंसर आया एक। ओके फाइन कृष्णा प्रिया, ठीक है। अरसलान एंड फादल, आई विल गिव यू गाइस 1 more minutes एंड देन आप लोग आंसर भेजेंगे, ठीक है। Okay, Arslan has also got. फादिल, फादिल का भी आ गया, चलिए ठीक है। 2.01 ग्राम्स आ रहा है सभी का। सो होपफुली, चलिए हम थोड़ा सा आंसर चेक कर लेते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 78। या वेरी गुड, सही है, सबका आंसर सही है। वेरी नाइस। अब जो इसके बाद आपके पास है ना, दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक सेकंड हो जाएंगे। इसको रहने दो। मतलब एक और सवाल है, उसको कर लीजिए, फिर हमको इत्मीनान हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। एक और सवाल है, उसको कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा हमें इत्मीनान हो जाएगा। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अगले ही क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ट्राई दिस वन।
गाइस एनी आइडिया अबाउट हाउ लॉन्ग द करंट फ्लू, कितना देर तक करंट बहा, टाइम? दे हैव गिवन यू 2 ग्राम 63.5 आपको, तो मोल्स निकल जाएंगे वहां से। अच्छा ठीक है, फाइन, ओके, कृष्णा प्रिया हैज गॉट। ओके, कृष्णा प्रिया हैज गॉट बोथ द आंसर्स। फादिल एंड अरसलान हो रहा है। 3093 इज फादिल, वेरी गुड, करेक्ट। अरसलान, अरसलान यस सर। हो रहा है आपसे? माइक ऑफ है बाय द वे आपका। फिर देख लीजिए जरा एक बार कैसे होगा। ठीक है, सो हियर दे हैव गिवन यू few things. 2 ampere of current is flowing, 2 ग्राम ऑफ कॉपर। तो हम ना दोनों, यस वेरी गुड, करेक्ट अरसलान। फिर तो आगे हो जाएगा आपसे। ठीक है, व्हाट मास ऑफ जिंक एंड व्हाट मास ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो थोड़ा सा ना हम आप लोग में यहाँ पे आइडिया देते हैं कि ताकि आसानी से आपके पास आंसर आ जाए। देखिए जरा, ध्यान से देखिएगा। कॉपर के बारे में दिया है तो Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग एंड इट इज गिविंग यू 2 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, डेल्टा ओ एस, इट इज इक्वल टू हाउ मच, 2। दैट मीन्स 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। सही है। अच्छा, Zn2 पॉजिटिव से भी आपको Zn मिलेगा। हियर ऑल्सो डेल्टा ओ एस इट इज इक्वल टू 2। So same amount of current is flowing because ZnSO4 वाले में, CSO4 वाले में same amount of current is flowing because it is connected in series and it requires same amount of moles, same moles of electron also। ठीक है, तो जितना मोल कॉपर का बनेगा उतना ही मोल जिंक का भी बनेगा। जितना मोल कॉपर का बनेगा उतना ही मोल जिंक का भी बनेगा। सो हियर यू कैन राइट इट लाइक दिस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ जिंक बिकॉज सेम इलेक्ट्रिसिटी। या फिर उससे भी आपको अगर और भी ज्यादा ये करना है तो मोल्स ऑफ कॉपर डिवाइड बाई डेल्टा ओएस डिवाइड बाई डेल्टा ओएस। ठीक है, ऐसे कर ले आप, ये भी चलेगा। इवन दो डेल्टा ओएस इज सेम, तभी हम जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोल्स लिख सकते हैं। और मोल्स ऑफ कॉपर कितना है, 2/63.5 इज इक्वल टू मास ऑफ जिंक, W अपॉन मोलर मास ऑफ जिंक इज 65। ठीक है, तो आपके पास W विल बी इक्वल टू 65/63.5 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इसकी वैल्यू जो है ना, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.00 टाइप से आपके पास आंसर आएगा। 0.01 के करीब आंसर आएगा, 0.01, 0.02, इस तरह का कुछ आंसर आएगा। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा एंड यू विल जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई बाई 2। तो अप्रोक्सीमेटली आपका 2.0301 ऐसे आप आंसर बोल सकते हैं, 2.1 के करीब या फिर 2.0456 ऐसे कुछ आंसर आएगा।
ठीक है, यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। मेक सेंस? yes or no, please tell me। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए जरा एक और सवाल है। इसमें हम ना आपको एक बात बोलते हैं, जैसे यहाँ पे AgNO3 भी होता है। लेट्स सपोज AgNO3 इज आल्सो प्रेजेंट। तो हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए देखिए, when same amount of current is flowing ना, तो as I said moles upon delta OS, ये सबका सेम रहे। दिस विल बी इक्वल फॉर ऑल ऑफ देम। मोल्स अपॉन डेल्टा OS की मतलब कितना पर चार्ज, हाउ मेनी मोल्स हैव बीन डिपॉजिटेड, ये आप बता रहे हो। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ सॉलिड डिपॉजिटेड पर चार्ज, तो मोल्स अपॉन OS सबका बराबर होगा, यानी कि विल बी जो मोल्स ऑफ Ag डिवाइड बाई डेल्टा OS क्या हो जाएगा, 1। इट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ कॉपर डिवाइड बाई 2 will be equal to moles of delta OS है ना, 2 moles of Zn डिवाइड बाई 2। आपके पास मोल्स ऑफ कॉपर हो चाहे आपके पास मोल्स ऑफ Zn कुछ भी हो, आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं Ag के लिए। सिंस वी हैव कॉपर राइट, सिंस वी हैव कॉपर राइट नो, हम कॉपर से Ag का निकाल सकते हैं। कैसे? मोल्स ऑफ कॉपर डिवाइड बाई 2। एक सेकंड, उल्टा लिख दिया क्या हमने? जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। प्लस Ag, एक